बच्चे पढ़ो एग्जाम्पल 4 मार्क्स चलेगा लगता है। From a point P on the ground, the angle of elevation of the top of a 10-meter tall building is 30 degrees. A flag is hoisted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flag staff from P is 45 degrees. Find the length of the flag staff and the distance of the building from the point P. Okay, example is on page number 200. Thank you, beta. Sit down. So we are looking at flag. वो फ्लैग स्टैग है ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਕੂਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੀ from a point P angle of elevation of the top of 10-meter tall building is 30 degree. It means 10-meter long building है कोई angle of elevation बोल लिया हमने it is 30 degree. So this is a building 10 meter. This is the building. Angle of elevation कितना बच्चे with the building top ठीक है ऐसे flag लगा है here is a flag. We need to calculate the height of this flag. अगर top of the flag this देखोगे वो तो जो angle of elevation कितना बनता है बच्चे देखो yes so this angle is 45 degree. ए पॉइंट का नाम क्या देता है B D and B B ए पॉइंट A and this is P. ठीक है बच्चे so we need to calculate this distance BD DB distance ਅਸੀਂ निकालना ओके तो जिस तरह ਆਪਾਂ ਕੱਲ एग्जांपल्स ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ उसी तरीके से भी करा सेम ट्रिग्नोमेट्री रेशो तो पता नहीं होनी चाहिए। हाँ जी बच्चे सब तो पहले साइन tan 30 डिग्री लगाओ एस ट्रायंगल की गल करिए अगर ਅਸੀਂ ਇਹ ट्रायंगल की गल करिए ट्रायंगल PBA ਇਹ ट्रायंगल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ देखो tan 30 डिग्री it is always perpendicular to base perpendicular means AB आओ जी ट्रायंगल है ना तो परपेंडिकुलर आएगा AB और बेस आएगा PA या AP ओके tan 30 डिग्री की वैल्यू याद करिए कॉमन बेसिक वैल्यू भी काम याद कर लो tan 30 डिग्री इज 1 by very good 1 by √3 AB is distance given what 10 meter and PA is हाँ base we don't know the value of PA PA की वैल्यू नहीं पता सो आएगी तरह को क्या है PA नु तो लाओ क्या है PA is equal to √3 से चला गया so 10 square root of 3 meter this is a length 10 square root of 3 meter हाँ जी बच्चे समझ आई कोई प्रॉब्लम नहीं था कोई प्रॉब्लम है तो पूछो सो 10 मैं ना पहला मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ √3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ √2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ √5 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਅਪਰੋਕਸ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੋਗੇ ਆਏਗੀ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ 70.32 ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ 70.32 ਮੀਟਰ सो कॉमन जी वैल्यू ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਕ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ओके बच्चे ए डिस्टेंस ਨੂੰ अगर ਅਸੀਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲਈਏ x डिस्टेंस db तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी ab कितना ऊंचा हो गया ना f d पॉइंट कितना ऊंचा हो गया नीचे ग्राउंड तो ab प्लस bd क्लियर नाउ डिस्कस दिस ट्रायंगल DPA बड़े वाला ट्रायंगल तो यूज की कर रहे हो tan यूज कर रहे हो फिर tan यूज कर रहे हो ना हाँ tan यूज कर रहे हो फिर तो tan एंगल कितना आएगा हम
45 रेफरेंस एंगल 45 डिग्री। तो रेशियो इज सेम, परपेंडिकुलर ओवर परपेंडिकुलर थे क्या आएगा AD या DA, ठीक है। बेस केड़ा आएगा PA, AP या PA। tan 45 all know it is 1, it is 1, it is tan plus very good 10 plus x, PA is 17.32 meter. So it is easy to get the value of x, so simple, 17.32 is equal to 10 plus x, you can take 10 here, 17.32 minus 10 is equal to x, so x means 7.32 meter here. So I simply subtracted 10 from 17.32. So x, we denoted x as a height, the length of a flagstaff. So x determined, let's see, we have 7.32 meter. On the bank, on the opposite sides of the river are 30 degree and 45 degree respectively. If the bridge is at a height of 3 meter from the banks, find the width of the river. हाँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस तरह रिवर बनया है, देखो ये रिवर है ते इथों कह लो कि एक नदी वग रही है ना, तो ए पॉइंट केड़ा पॉइंट की बोले उस P पॉइंट है, P पॉइंट, ठीक है। P तो अगर तुसी इधर बैंक एक इधर साइड देखो और इधर साइड देखो, एंगल कितना बचा देता है 30 डिग्री और एंगल कितना देता है 45 डिग्री, ठीक है। सो वी नीड टू कैलकुलेट दिस हाइट, दिस लेंथ, विड्थ कितनी है, और रिवर इधरों निकल रही है ना, एवरेज है, तो हाइट कितनी हुई है सर 15 10 थे। और बच्चे हाइट कितनी है जी, कितनी 3 मीटर, सो हाइट इज 3 मीटर। सो बन गया, देखो बच्चे ऑटोमेटिकली ए पॉइंट बोल लो कितना ए, ए पॉइंट कितना बी, ए पॉइंट कितना कितना ए बी डी डी कितना बी। बच्चे देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ए पॉइंट बोलो नहीं दिता, ए लाइन से पैरेलल होगी, एंगल 30 है तो एंगल कितना होगा, रीजन की दोगे क्योंकि ए पी का लोकी आएगा ट्रांसवर्सल, अगर ट्रांसवर्सल z बन गया तो इट मींस एंगल 30 डिग्री आएगा, तो एंगल कितना आएगा बोलो 45। इट मींस अगर 45 है बीडी लेंथ कितनी आएगी कितना, किस तरह, क्योंकि tan 45 1 बन जाना, परपेंडिकुलर ओवर बेस ते p ओवर बेस और परपेंडिकुलर की होने सेम होने, इट मींस अगर 3 मीटर है तो कितना आएगा, ਜਦੋਂ एंगल 45 डिग्री हमेशा याद रखो, ਜਦੋਂ एंगल 45 डिग्री क्योंकि tan 45 1 बन जाना, तो बेस का परपेंडिकुलर सेम हो जाना, इट मींस है कि ना आएगा देखो 3 मीटर पहले निकाल लिया ਆਪਾਂ, तो ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ मैथमेटिकली लिख सकते हो tan 45 in this triangle, in this right angle triangle 45 is equal to base की PD लिखना जरूर है, उसका मार्क्स नहीं मिलते, मैं तो प्रैक्टिस समझा देना। सो tan 45 1 आ गया, PD is equal to DB आ गया, तो DB is equal to PD आ गया, तो दोनों की वैल्यू कितनी आ गई 3 मीटर, क्योंकि PD की वैल्यू 3 मीटर, ठीक है। सो ए आ गया 3 मीटर। तो बच्चे देखो आप पूरी लेंथ फाइंड करनी, बस ऐसे पूछा आप नहर दसना कि जी नदी है रिवर है वो कितना चौड़ा है, तो हूँ आप निकालना सिर्फ आप एडी की वैल्यू निकालनी, तो एंड राइट एंगल ट्रायंगल जब आ जाए फिर tan यूज किया, हाँ tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो ही रहेगा 3 मीटर, क्या आएगा PD ओवर क्या आएगा बच्चे बोलो AD आएगा, PD ओवर AD आएगा। हाँ जी बच्चे PD ओवर AD 30 tan 30 डिग्री का मतलब कितना 1/√3, वेरी गुड 1/√3 आ गया, PD इज इक्वल टू AD। हाँ जी PD की वैल्यू कितनी है 3, यस 3, सो 1/√3 इज 3 ओवर
AD, तो AD इधर शिफ्ट कर लो, 3 ना मल्टीप्लाई कर लो, AD इज इक्वल टू क्या आया 3 स्क्वायर ऑफ 3, यही है ना। सो टोटल विड्थ ऑफ कितनी आएगी, टोटल विड्थ है तेरे को AB की आएगा AD प्लस BDB, तो AB कितना आ गया तेरे को बच्चे, AD कितनी मिले 303, AD कितनी है 3 है ना, तो 3 कॉमन है, 3 कॉमन निकालो, अंदर की बचा 3 प्लस 1, ऐसे देखो सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यदि एक्सरसाइज भी इजी है, मैं ना एक एक्सरसाइज वीडियो बना रहा दूसरी स्क्रीन पे, वो तो शेयर कर दूंगा, अगर कल क्लास से करावांगा तो वो बैक से उसी तरह ही बता दूंगा, तो देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच। तो एग्जांपल चंगी तरह करो दिया।